नमस्कार। मैं पूनम पाठक आप लोगों को आज हिंदी में पहले अध्याय का पहला श्लोक गीता पाठ करूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्रदीप कुमार पाठक आप लोगों को पहला अध्याय का पहला श्लोक सुना रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो where we will explain the Bhagavad Gita chapter 1 verse 1 in English, Hindi and Sanskrit languages. The Bhagavad Gita is a sacred scripture of Hinduism that contains the dialogue between Lord Krishna and Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. It is part of the epic Mahabharata which narrates the war between the Pandavas and the Kauravas, the two branches of the royal family. The first chapter of the Gita is called Arjuna Vishad Yoga, which means that yoga of Arjuna's despondency it sets the scene for the conversation between Krishna and Arjuna and describes Arjun's dilemma about whether to fight or not. The first verse of this chapter is spoken by Dhritarashtra, the blind king of Hastinapur and the father of the Kauravas. He asks his charioteer and advisor Sanjay, who has been granted divine vision by the sage Vyasa, to tell him what is happening on the battlefield. Let us look at the verse in Sanskrit, followed by its transliteration word to word, meaning and translation in English and Hindi. The verse in Sanskrit is Dhritarashtra Uvach Dharma Kshetre Kuru Kshetre Samavetayutsava Mamaka Pandavascheva Kim Kurbat Sanjaya. The word by word meaning is Dhritarashtra said, Dhritarashtra Uvach Dharma Kshetre, in the land of Dharma, Kurukshetra, in the Kurukshetra, Samaveta, its meaning is having gathered together. Yudsava, its meaning is desiring to fight. Mamaka, my sons and the Pandavas, total. Akurbat, did they do? Sanjay. The translation in English is, Dhritarashtra said, O Sanjay, after gathering on the holy field of Kurukshetra and desiring to fight, what did my sons and the sons of Pandu do? The translation in Hindi is, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होकर युद्ध की इच्छा से भरे हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र में क्या किया? This verse shows Dhritarashtra's attachment to his sons and his anxiety about their fate. He knows that Kurukshetra is a sacred land where dharma will prevail, and he fears that his sons may lose their resolve to fight against their righteous cousins. He also hopes that Sanjay will give him some good news about his son's victory. Sanjay will narrate the events of the war to Dhritarashtra in the following verses and also reveals the teachings of Krishna to Arjuna. We hope you have enjoyed the first verse of the first chapter. Thank you. धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और सर्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा
विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरव का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? यह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, इसलिए जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्र को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के अधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजे के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनः स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधे को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। पहला अध्याय का पहला श्लोक समाप्त। अब मैं आज का कथा यहीं ख़त्म करते हुए आगे आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। कुछ शंका मेरे मन में भी है, तो हमें लगता है शायद सनातनियों के मन में आता होगा ये प्रश्न, तो मैं थोड़ा सा वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् भगवत गीता क्या एक ही ग्रंथ है? यह हम सभी सनातनियों के मन में आता है। श्रीमद् भगवत पुराण है और इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। यह सुखदेव स्वामी और अर्जुन पौत्र परीक्षित महाराज के बीच संवाद है। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद है। इसमें 18 अध्याय और 701 श्लोक है। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वार्तालाप है और युद्ध का विवरण भी है, जो महर्षि व्यास जी कृत महाभारत का अंश है। हम लोग बचपन से ही अपनी नानी दादी से रामायण कथा और महाभारत सुनते आए हैं। कभी कभी सत्संग में भी हम लोग सुने हैं। जब बच्चे छोटे थे तो हम लोग कॉमिक्स पढ़ने देते थे। मोटू पतलू, चाचा चौधरी, चंपक, टॉम एंड जेरी, मिकी माउस, चंपक, पराग, नंदन में उनकी दुनिया सिमट के रह गई। हम लोग अपने बच्चे को सचरित्र रामायण, सचरित्र महाभारत,
दिया करती थी पढ़ने के लिए। फिर दूरदर्शन का आया ज़माना और रामानंद सागर कृत रामायण और B.R. चोपड़ा निर्देशित महाभारत आया। बच्चे बड़े ध्यान से 9 बजे टीवी के पास बैठ जाते थे, लेकिन हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पे ध्यान नहीं दिए। हम सभी सनातनियों से आग्रह है कि श्रीमद् भगवद गीता अपने बच्चों को के जन्मदिन पर उनके सभी दोस्तों को गिफ्ट के रूप में दें, ताकि हमारे इस महानतम सनातनी पवित्र ग्रंथ के प्रति उनकी रुचि बढ़े और उन्हें ज्ञात हो अपने इस धर्म, अपने पवित्र धर्म और पवित्र ग्रंथ की। नमस्कार। नमस्कार। राम।